ये जो रथ है, लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? जब देश की आस्था है कि ये जन्म स्थान है, तो फिर हमको कहने का पूरा हक है कि जहां राम का जन्म हुआ था, मंदिर वहीं बनाएंगे। जहां राम का जन्म हुआ था, मंदिर वहीं बनाएंगे। Hello everyone. Today I bring to you a dialogue with Abhijit Deshpande. Abhijit grew up in a family of Rashtriya Swayamsevak Sangh activists. He was indoctrinated into Hindu nationalist ideology. When the Ram Janmabhoomi movement started, he was inspired to join it. He even traveled all the way to Ayodhya and participated in the demolition of the Babri Masjid. As he took a train back and looked out of the window, he began to question what he just did. For the next 10 years, he kept questioning himself. He moved from his native town to Mumbai and started reading books. He found wisdom in the words of Buddha, J. Krishnamurti, and Kabir. Once a Karsevak, dedicated to forming a Hindu nationalist state, now became a humanist. So I hope you enjoy my conversation with Abhijit Deshpande. It's nice to have you on this dialogue. You're a very special person. After having a conversation with you, I think a couple of weeks ago, I realized that your story, your life story, and the way you have transformed yourself can be inspiring to a lot of people who have not caught up with the kind of transformation you have gone through. And I will also say a very important part of my realization is that it's not, I know you came from RSS background and you freed yourself from your ideological indoctrination, but it's not just limited to your indoctrination. I think anybody and everybody from every kind of indoctrination can get inspiration from your story, because I think being human is about being curious. It is about being rational, and it's about being open to the future that is possible and not get trapped in any kind of thoughts. And I think that's the inspiration I took from reading your book. So congratulations, your book is amazing. Thank you, sir. Thank you very much. So I want to start with an exercise. In your book, you have written that as you went through your transformation, you probably left a few friends behind, your dear friends, your family was hurt. And as you wrote the book, some people you have referenced in your book, they were also hurt. Yep. So I would like you to say something to all of them whom you have left behind. You can say anything. What would you say from deepest part of your heart? See, for me, it was exactly like Arjuna on the battleground. They are my people. They are my beloved persons. And I cannot relate to them because of the ideology. And it was the realization at that point of time how ideology divides you.
rather than unites you. At you can say ideology also unites people, and uh, if you look at other way, ideology also separates people, and that's the point which I still worry about. Uh, but I think you should raise yourself and should have a dialogue with them as well, because it is not we and they, I and they. You should able to connect with all of the people, because when I read, our saint poet, right from Sant Tukaram, Sant Jnaneshwar, to Sant Kabir, and so on. If you read many philosophers, uh, right from Buddhist philosophy to Stoic philosophy, to Greek philosophy, and so on, I think all of them are looking at a bigger human picture, human society at large. Many traditions in the world are trying to connect all of the humanity, and still that project is going on, and we should be able to uh, contribute to that. uh, Let me quote two things, one from Amartya Sen and another from Kabir. uh, when I wrote this book, these are the quotes that I mentioned. Amartya Sen says in one of his books, when Hindutva activists tell us we are primarily Hindu, it is an invitation to forget our multicultural pursuit of dialoguing, politics, and multicultural concern about tolerance, and put ourselves in a little box in terms of our religion. And I think the cultivation of a singular identity makes a major contribution to the disaffection, violence, and terrorism that exist in the world today. And another uh, Doha by Kabir, he says, Sadho dekho jag baurana. Baurana means uh, how little, मतलब छोटी थॉट वाला. साधु देखो जग बौराना, सांची कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना. मतलब आप सच बात करने के लिए जाते हो तो लोग आपको मारने के लिए आएंगे, लेकिन आप झूठ बात करते हो और बहुत इंप्रेसिवली बताते हो तो लोग आपके पीछे रहेंगे. हिंदू कहता है राम हमारा, मुसलमान रहे माना, और आपस में दो लड़े मरत है, मरम कोई नहीं जाना. सो दे ही सेज अल्टीमेटली कि देर वो आपस में लड़ रहे हैं, बट दे डोंट नो द क्रक्स ऑफ द रिलीजन. So I think whether it is about ideology, whether it is about religion, everybody should try to unite the humanity, and we should contribute towards that. But as I said, some of my friends, some of my colleagues, some of my close relatives, uh, I could not establish, or I could not establish contact with them again, or I could not reconnect with them, because still they are uh, far away from me ideologically. But that's where you came from. Yes. So why can't they see you as a part of them who has taken a path that it's possible for them to take that path also? They see you happy. You look so inspired. You look so happy. You look so free. Don't they look at you and feel, I want to be like him? Yes, either way, ऐसा ही है. But what happens is, they are there only, और मैं उनसे कई कोस दूर चला आया हूँ. So what happens is,
मैं जो बात कह रहा हूँ उनको लगता है कि आई एम देयर एनिमी इन अ वे। मैं ऐसी कुछ बात कर रहा हूँ, मैं अगर कहता हूँ, मैं तुरंत ये नहीं कहूंगा कि आई एम एथेइस्ट, बिकॉज अगर मैं वो बात रखूंगा कि मैं एथेइस्ट हूँ, मैं ईश्वर पर विश्वास नहीं करता हूँ, तो मैं बिल्कुल अ, उनका जो दायरा है सोचने का, उससे कंप्लीट कुछ अलग कह रहा हूँ। एंड फिर या तो वो मुझसे बात करना कम कर देंगे या फिर अटैक करना शुरू कर देंगे। सो आई डू नॉट स्टार्ट विथ दैट गॉड वाला पार्ट, आई डू नॉट स्टार्ट विथ आइडियोलॉजिकल पार्ट, आई स्टार्ट डायलॉगिंग विथ द बेसिक थिंग्स ऑफ लाइफ। एंड विद आई पोज सम क्वेश्चंस कि क्या जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इतना इम्पोर्टेंट है, इसके बिना भी जिंदगी हो सकती है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुछ आइडियोलॉजिकल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं कि सपोज somebody says हिंदू खतरे में है, सो मैं कहता हूँ कि किस तरह से हिंदू खतरे में आपको लगता है। वो अगर वही जो लीडर्स बताते हैं उस तरह की बात अगर करने लगते हैं, तो मैं अगला सवाल पूछता हूँ कि क्या इसके प्रमाण है कुछ, क्योंकि वो लीडर कह रहे हैं, दैट इज देयर प्रूफ। सो मैं उससे भी क्वेश्चन करना चाहता हूँ, बट आफ्टर अ पॉइंट, जैसे कि एक ये होता है कि टेक्स्ट ही सही है, वैसे लीडर ही सही है। अगर लीडर कह रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें तथ्य होगा और वही बात सही होगी, ये जो उनका मानना है, तो इससे मैं फिर रिलेट नहीं हो पाता हूँ। I get it. मुझे लगता है कि कोई भी चीज हो, सवाल पूछो, सवाल पूछो। खुद के मन में भी अगर कुछ सवाल आता है तो उससे उसको भी सवाल करो, और फिर ढूंढने की कोशिश करो कि सच क्या है। यू मे नॉट गेट टू द ट्रूथ जल्दी, लेकिन आपको सवाल तो पूछना चाहिए। This is fantastic. And, I wanted to start our dialogue with our audience getting a glimpse into who you are now and not who you were before. And this picture that I'm getting right now through what you just said for the last 5 minutes is so refreshing, and it creates hope. So I want to go take a flashback and go a little back into the history. Your family background was a family of RSS. Uh, I read everything in your book about how you did kirtan as a child. And of course, it was almost like a play for you. I mean, playfulness. It was not like it just came to you and you created something and people loved it and they started calling you everywhere. Over a period of time, you joined the RSS, you became more active there. And then when Karse Works went for to Ayodhya, you were a part of that group. On the way back, you said you looked out of the window of the train and you began to see the silence, the tension in the air, and something happened inside you. So, my question is, what was in your predisposition? Because you were so well constructed. In fact, not all, I have many RSS friends. Not everybody has the benefit of the exposure you had in the Hindutva ideology. So many great leaders came to your house and you had familiarity with them. What was it about you that was in your mind that was so different from everybody on that train? Why did it only happen to you? So, my curiosity is about your mind. What was in your mind? There's something that made you start thinking in a different way. Have you thought about that? Yes, on 7th of December, हम कार सेवकों को वहां से निकालना शुरू कर दिया गया। Hmm. एंड then we started journey towards our hometowns. So as I written in my book as well, हम जब ट्रेन से आ रहे थे तो
इतना सन्नाटा रेलवे स्टेशन पे मैंने देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। नॉट जस्ट दैट, अगर ट्रेन जा रही है, सफर कर रही है, तो ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट, दूसरी स्टेट से तीसरी स्टेट, कई स्टेट्स क्रॉस करके मैं महाराष्ट्र तक फिर वापस पहुंचा, बट रोड पे भी सन्नाटा दिख रहा था। वो जमाना ऐसा नहीं था कि जब हाथ में रेडियो हो या न्यूज़पेपर आसानी से मिले, बिकॉज स्टेशन पर जैसे मैंने कहा कि सन्नाटा ही था, सो न्यूज़पेपर भी नहीं मिल रहा था। बट आई कुड सेंस समथिंग इज रॉन्ग। क्या पता नहीं चला। ऑन 10th of December I reached my hometown Parbhani in Marathwada area in Maharashtra. सो वहां पर कुछ लोग हमारा वेलकम करने के लिए आए थे, बट बाकी रोड पर तो सन्नाटा था और कर्फ्यू चल रहा था। लेकिन कुछ लोग हमारा वेलकम करने के लिए, माला पहनाने के लिए आए थे कि आप बड़ा कुछ करके आए हो, बट इट वॉज कर्फ्यू टाइम। देन हम घर पे पहुंचे, और घर पे फिर जो भी न्यूज में देख रहा था, जो भी पढ़ रहा था, और आसपास के पूरे गलियों में जिस तरह का सन्नाटा था, तो ये कहा जा रहा था कि हम पर अभी मुसलमान अटैक कर सकते हैं, तो आपको अभी रात में भी गश्त लगानी होगी। तो एक 50-60 घरों की छोटे से कॉलोनी में 5-5 6-6 घरों के लोग रात में जागते थे और पूरी रात तक पहरा देते थे कॉलोनी में। ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं था। हालांकि मेरे स्कूल्स में, कॉलेजेस में फ्रेंड्स भी मुसलमान थे, मेरे टीचर भी 2-3 टीचर्स थे जो कि मुसलमान रहे हैं। इतना उनसे दूरी कभी महसूस नहीं की थी। ऐसा क्या हुआ कि इस तरह की चीजें सुनने में आ रही है। ये भी कहा जा रहा था कि मुसलमानों ने कई हथियार जमा किए हैं, वो कभी भी हमला कर सकते हैं, एंड सो ऑन। और बाकी देशों से, अलग अलग भागों से जो खबरें आ रही थी, दंगों की खबरें आ रही थी, तो इससे टेंशन बढ़ गया था। सो मेरे दिमाग में पहली ये चीज आई कि मैं कार सेवा के लिए, हमें अयोध्या ले जाया गया, और कार सेवा का मतलब जो बताया गया था वो ये था, कर से मतलब हाथों से कुछ सेवा करनी है राम, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ कार सेवा, जो कि सिख धर्म से इस शब्द अ, ये शब्द आया है, जो हाथों से सेवा करते हैं। तो कार सेवा आपको वहां अयोध्या में जाके करनी है। सो कुछ बांधने का काम करना है, लेकिन हम कुछ तोड़ के आए। तो मुझे लगा कि हमने सिर्फ बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ी, हमने तो कई चीजों को तोड़ा है। विश्वास को तोड़ा है हमने, जो यूनिटी जो भी थी उसको तोड़ा है। जो हमारे लीडर्स ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था कि जहां पर हिंदू मुसलमान सब जाति के, सब धर्मों के लोग इकट्ठा रहे, उस तरह का वातावरण तैयार करना, ये कई युगों तक चलने वाला काम है। तो वो जो काम थोड़ा बहुत चल रहा था, उसको मैं तोड़ के आया हूँ, उसको मैं बर्बाद करके आया हूँ। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी अंदर से। एंड 1-1.5 साल फिर इस तरह से मैं खुद के साथ इन अ वे जूझता रहा। और जब मैं मुंबई आया, अ, और फिर मैंने पढ़ना डिलिबरेटली शुरू कर दिया, क्योंकि परभणी में कॉलेज में बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस थे, लाइब्रेरीज वगैरह जो भी थी, उसमें लिमिटेड तरह का लिटरेचर मिलता था। फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन आई केम टू मुंबई, एंड हियर इन मुंबई यूनिवर्सिटी आई गॉट अ ह्यूज लाइब्रेरी, and I started reading many kind of works. So what is religion basically? Religion क्या है? अलग अलग धर्मों का इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दिया। बट आम्बेडकर और फुले जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, उनका तो मैंने कुछ पढ़ा था। बट सडनली आई केम अक्रॉस अ वॉल्यूम ऑफ बुक्स कॉल्ड भारतीय तत्वज्ञानाचा बृहद इतिहास. So a broad history of Indian philosophy, philosophical traditions. So I started reading that. So Vedic tradition, and then I realized, अरे there are non-Vedic traditions as well. So जो मैंने मेरे बचपन में सीखा था कि जो भारतीय संस्कृति है इज इक्वल टू हिंदू संस्कृति,
एंड इज इक्वल टू वैदिक संस्कृति ओनली। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग मेरा बना था वो कितना लिमिटेड था। व्हेन यू से इंडियन कल्चर, और हम वैसे तो कहने के लिए कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और इतना डाइवर्स कल्चर है। मैंने वैसे भारत महाराष्ट्र के बाहर भी ज्यादा सफर नहीं किया था, तो वो डाइवर्सिटी मैंने देखी नहीं थी उस तरह से। सिर्फ जो डाइवर्सिटी देखी थी वो जातियों की डाइवर्सिटी मेरे इलाके की देखी थी। लेकिन देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग हाउ डाइवर्स अवर इंडियन कल्चर इज, एंड नॉन वैदिक ट्रेडिशंस, मेड बी जैनिज्म, मेड बी बुद्धिज्म, मेड बी सिखिज्म, एंड नॉट जस्ट दैट, आई केम अक्रॉस चारवाक ट्रेडिशन। हालांकि ये ट्रेडिशन आज उस तरह से जिंदा नहीं है, फिर भी चारवाक ट्रेडिशन एंड बुद्धिस्ट फिलोसफी इन पर्टिकुलर impressed me so much। और फिर मैं जिस तरह से रीडिंग करता गया, मेरे ही अंदर के सवाल थे, उनके आंसर देने वाले वैसे आसपास कोई नहीं थे। बिकॉज मैं लिटरेचर पढ़ रहा था, टीचर्स को मैं रिलीजन के बारे में या और इस तरह की चीजों के बारे में पूछता तो भी वो थोड़ा लिटरेचर की तरफ ले जाते। बट अगेन, लिटरेचर एक ऐसी चीज है जो आपको रेज करती है, आपको ऊपर उठाती है, खुद से एक ऊपर की दुनिया दिखाने की कोशिश करती है, ह्यूमैनिटी की तरफ लेके जाती है। थोड़ा वर्ल्ड लिटरेचर भी पढ़ना शुरू कर दिया, एंड दैट वाज द टाइम वे बैक इन 96 97 कि I suddenly exposed myself to the फिल्म सोसाइटी कल्चर इन मुंबई, जहां पर वर्ल्ड सिनेमा दिखाया जाता था, एंड दैट वाज फैंटास्टिक सिनेमा। सो एंड इट इज एक्चुअली अ विंडो टू द वर्ल्ड। सो जब मैंने इस तरह का वर्ल्ड सिनेमा देखना शुरू कर दिया, तो अलग अलग दुनिया की देशों की अलग अलग कल्चर्स की फिल्में, इसने भी मुझे अंदर से डिस्टर्ब भी किया, और एक तरह से मुझे रेज भी किया कि नहीं, ये ह्यूमैनिटी की तरफ आपको देखना है। एंड ये सारी चीजें थी जिनसे मैं धीरे 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 मेरे ही सवालों से जूझते हुए, मेरे ही सवालों को एक्सप्लोर करते हुए, थ्रू रीडिंग, थ्रू फिल्म्स, थ्रू डायलॉग विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स, एंड थ्रू वट एवर आई कुड थिंक, मैं एक ब्रॉडर ह्यूमैनिटी की तरफ आ गया। एंड इट वाज अ मिक्सचर ऑफ मेनी आइडियोलॉजीज। वन, एज आई सेड, बुद्धिस्ट फिलोसफी, number two, Charvaka tradition, which is a materialistic philosophy, and third one was J Krishnamurti. So ये सारी चीजों का एक अजब सा मिश्रण मेरे अंदर हुआ, और इनसे मैं कुछ कंक्लूजन तक पहुंचा। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी एक कंक्लूजन पर पहुंचना ये इस तरह से गलत होगा, क्योंकि आप जब एक कंक्लूजन पर पहुंचते हो और फिर वही नहीं, एक रिजिडिटी आप में आ जाती है। सो दैट रिजिडिटी फिर आपको स्टैटिक बनाती है। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो जर्नी है वो करनी चाहिए। मतलब आज इतने सालों के बाद फिर से मैं रिलीजन की तरफ देखता हूँ। मैं तो खुद रिलीजन से दूर आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि रिलीजन ने कुछ अच्छी चीजें भी की है। कई सारे लोग जो अपने सवालों के आंसर नहीं दे सकते, जो उनको यूनाइट करने का भी काम किया है, उनको एक मेंटली एक पीस देने की कोशिश भी की है। हालांकि मैं मानता हूं कि स्पिरिचुअलिटी को आपको रिलीजन से जोड़ना उतना नहीं चाहिए। स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग डिफरेंट, जो कि विथ व्हाट आई कॉल मनाचं उन्नयन, मतलब रेज योर सेल्फ। तो ये जो चीज है, ये विदाउट गॉड भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें थी। आई कैन सी कि सोशली और एज अ सोशल सिस्टम रिलीजन का एक इम्पोर्टेंस है, था। लेकिन जिस दिशा में आज धर्म जा रहा है पूरी दुनिया भर में, चाहे वो इस्लामिक टेररिज्म हो, चाहे वो हिंदू फोबिया हो, या एक हिंदू कल्चर जिस तरह से पोलिटिसाइज किया जा रहा है,
वो हो। तो ये सारी चीजें, या फिर क्रिश्चियनिटी, या फिर इवन बुद्धिस्ट, मैंने देखा है कि नॉन वायलेंस प्रीच करते करते जिस तरह की वायलेंट चीजों के इंसिडेंट्स मैंने कई देखे, तो इट डिस्टर्ब्स मी। तो टेक्स्ट में कुछ लिखा है और आपकी प्रैक्टिसेस कुछ और है, जो कि पूरी तरह से पॉलिटिकल है, इट इज अबाउट पावर। सो मुझे लगा कि धर्म के बारे में फिर से रीथिंक करना चाहिए। लेकिन मैं अगर ये कह दूं कि नहीं नहीं, धर्म होना ही नहीं चाहिए, सो सडनली मैंने ये देखा है कि जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों के साथ धर्मांतर किया, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स दलित फैमिली से आते हैं, सो वो खुद को बुद्धिस्ट जरूर कहते हैं, बट कई सारी हिंदू कल्चरल ट्रेडिशंस भी आज फॉलो करते हैं। सो आप बाबा साहेब अम्बेडकर कह रहे हैं इसलिए आपने धर्म तो बदला, लेकिन जो कई सारी प्रैक्टिसेस थी उनको तो आपने नहीं छोड़ा। अंबेडकर जिस थॉट प्रोसेस से धर्मांतर की तरफ गए थे, वो थॉट प्रोसेस सारी दलितों में तो नहीं हुई थी। तो मुझे लगता है ये थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, किसी के एक एक के कहने से ये पूरा बदलाव नहीं होगा। सो वो थॉट प्रोसेस से पूरी सोसाइटी जानी चाहिए, और ये थॉट प्रोसेस के लिए आई थिंक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ये आज मैं टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो मुझे पूरी एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए ऐसा लगता है कि वी एज इंडियन सोसाइटी failed to teach or inculcate द रियल एजुकेशन, इन द सेंस जो हम यूनिटी की बात करते हैं वो यूनिटी, जो साइंटिफिक अप्रोच की बात हम करते हैं वो साइंटिफिक अप्रोच हम पूरी समाज में ठीक तरह से इनकलकेट नहीं कर पाए एज अ सिस्टम। सो ये अगर होता तो आज जो भी भारत में सोशल इश्यूज हमें दिखते हैं रिलीजन के नाम पर, तो वो नहीं दिखते। या फिर आज की चीजों का जो एक अंडरस्टैंडिंग है या इश्यूज का अंडरस्टैंडिंग है, वो इतना खोखला नहीं होता अगर हम एजुकेशन ठीक से देते। I get it. So I have one question now. This is fantastic. Actually, I have two questions, but I'm going to ask one about the past first and then the one about future later. The first question is the day Babri Masjid verdict came out of Supreme Court. I read it and I wrote a poem and I will read it later for you. But what was your reaction when you heard the verdict? I will keep it open ended and then I will probe deeper about certain aspects of it. Did you have a reaction? Yes, it was a mixed reaction because ये कि अभी ठीक है, मामला तो खत्म हुआ। क्योंकि ये सालों से चल रहा था। हम्म, अभी वहां पर मंदिर बांधने वाले हैं, और मुसलमानों के लिए एक जगह मस्जिद बनने के लिए दी गई है। तो ये ऊपर से तो अच्छा लगता है कि अरे ठीक है, मामला अभी खत्म हुआ। बट जब मैंने वर्डिक्ट ठीक से पढ़ना शुरू कर दिया, तो मुझे लगा कि ये कैसा वर्डिक्ट है जिस वर्डिक्ट में ये नोट किया गया है कि जो बाबरी मस्जिद गिराने के बाद भी, या जो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस वहां पर मिले, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि वहां पर कुछ हिंदू स्ट्रक्चर पहले था। इसके कोई भी प्रमाण नहीं है, कोई भी प्रमाण नहीं है। फिर भी आ, ये कहा गया कि ये जो जगह है वो हिंदुओं को दी जाएगी, नंबर वन। नंबर टू, ये कहा गया कि जिन्होंने भी मस्जिद गिराई है वो फैनेटिक पीपल थे, फैनेटिक लोग थे। तो अगर वो फैनेटिक लोग हैं, उनको तो कोई आपने पनिशमेंट नहीं दी। उनके ठीक है, वो अभी अनआइडेंटिफाइबल आपको हो सकता है, लेकिन जो पॉलिटिकल फोर्सेस थी, जो रिलीजियस फोर्सेस थी, वो तो आपको पता पता है कि इन लोगों ने इनको इकट्ठा किया था, इन लोगों ने उनमें इस तरह का एक उन्माद पैदा किया था। तो उनको तो कुछ पनिशमेंट जरूर दी जा सकती थी। कई सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने बहुत फायरी स्पीचेस तब किए थे, उनके लिए कुछ भी नहीं था। सो ये कैसा वर्डिक्ट है? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली,
इतने सारे लोगों ने मस्जिद गिराने के बाद भी वो जगह, जो कि कंट्रोवर्शियल जगह है और जहां पर कुछ भी प्रमाण हिंदू स्ट्रक्चर होने का नहीं मिला है, फिर भी वो दिया गया हिंदुओं को और मुसलमानों को दूर कहीं जगह भेज दिया गया। सो मैं उसको न्याय नहीं मानता। इट वॉज फॉल्टी वर्डिक्ट। And then I also remember in the last conversation with you, you mentioned, and I think you mentioned it in the book, that when the Prime Minister went for Shilanyas, you had some reflections about that also. What were your reflections? भारत के प्रधानमंत्री को मंदिरों में जाके पूजा अर्चा करना या मंदिर का शिलान्यास करना, उद्घाटन करना, यही काम बचा है क्या? और अगर आप राम मंदिर के शिलान्यास के लिए जाते हो, तो मुझे ये भी लगेगा एज अ इंडियन सिटीजन कि फिर उन्होंने जो भी बाबरी मस्जिद के लिए जगह दी गई है, मस्जिद के लिए जगह दी गई है, और वहां पर मस्जिद बिल्टअप होगी या और कुछ जो भी मुसलमान पक्ष ने ऐसा कहा है कि हम एक वहां पर लाइब्रेरी बिल्टअप करेंगे, वहां पर एक कल्चरल सेंटर बिल्टअप करेंगे एंड सो ऑन, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर उस तरह का कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। इफ एट ऑल वी बिलीव दैट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, और अगर सेक्युलर कंट्री है तो सारे धर्मों का समान रिस्पेक्ट होना चाहिए, तो वो तो नहीं दिख रहा है। एंड एज वी नो, दिस इज Hindu fanaticism which is growing, and I was disturbed because of that in I this get it. context. So, one question in this line of questioning, and then we'll come to the future again. When you read that line in the Supreme Court verdict that demolition of the Babri Masjid was a criminal act, did you think of it as an act committed by others, or did you see yourself in that also? Myself, myself, because मैंने ये किताब लिखी, I always say it is a confession. इट इज माई कन्फेशन। मैंने कुछ एक बहुत बड़ी गलती की है, और वो गलती दुनिया के सामने रखने के लिए भी मुझे 10-12 साल लगे। मुझे लग रहा था अंदर से कि मैंने बहुत बड़ी गलती, और गलती नहीं, क्राइम किया है, क्राइम किया है। जैसे मैंने कहा कि मैंने सिर्फ बाबरी मस्जिद गिराने में कंट्रीब्यूट नहीं किया, सिर्फ मैंने हमारा जो संविधान का ढांचा है, जो कि सबको इकट्ठा लाने की कोशिश करता है, उस ढांचे को भी मैंने गिराया है। तो ये मुझे अंदर से लगता रहा और लगता रहेगा आगे भी। सो आई एम वन ऑफ दोज क्रिमिनल्स। एक बार मैंने फेसबुक पर लिखा भी था कि हर किसी लेखक को लगता है कि मेरी किताब सालों साल तक रिलेवेंट रहे। लेकिन हर 6 दिसंबर को मुझे लगता है कि मेरी किताब धीरे धीरे एक ऐसा माहौल पैदा हो कि मेरी किताब धीरे धीरे इररिलेवेंट होती जाए। इररिलेवेंट इन द सेंस कि अरे बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मसला तो अभी खत्म हुआ, हिंदू मुसलमान ये जो झगड़े थे अभी वो मामले नहीं है, तो इसके बारे में अभी दैट इज इररिलेवेंट, आउटडेटेड बुक है अभी। तो आउटडेटेड मेरी बुक होनी चाहिए ऐसे मुझे लगता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, मेरी बुक आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, एंड आई फील सैड अबाउट इट। That's very interesting. It's a basket of mixed feelings. यस। But what I admire about you is that somebody else would have got lost in those conflicting thoughts, but you found a way forward, right? And when I talked to you last time, it it feels took me that it took me so many years, it took me so many years to reach to this stage, टू क्लियर माई सेल्फ। वो क्लैरिटी आने के लिए बहुत साल लगे मुझे, क्योंकि मैं अलग अलग चीजें पढ़ता रहा, फिर अलग अलग तरह का कंफ्यूजन अंदर पैदा होता रहा। ये भी खतरा था कि मैं किसी एक तरफ झुकने का भी खतरा था।
एक बार ऐसा हुआ कि 6 दिसंबर के आसपास ही कोई एक टीवी पर इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया, टीवी चैनल पर। सो मैंने इंटरव्यू दिया, मराठी न्यूज चैनल था। सो मैंने इंटरव्यू देने के बाद 10 मिनट के बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी लीडर। हम्म। और उन्होंने कहा कि अरे आपने तो बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है, और आई वांट यू टू ऑन आवर फोरम, हम कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैंने कहा सर आई एम सॉरी, बट ये बिल्कुल नहीं है कि मैं एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को नहीं मानता हूं, इसका मतलब है मैं आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मानता। सो ये भी खतरे थे, लोग मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे। तो यस, मार्क्सिस्ट फिलोसफी और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोगों कांटेक्ट में आया, थोड़ा इन्फ्लुएंस भी हुआ। बट फिर भी उन उनकी भी एक जो प्रैक्टिकली सोच मैंने देखी, वो एक छोटी सी दायरे में हो रही थी। मुझे ये हमेशा लगता रहा कि ठीक है, हम अगर रिलीजन नहीं मानते हैं, हम अगर धर्म को एक नशा मानते हैं, लेकिन वो नशा किसी कुछ लोगों के लिए शायद जरूरी हो। हमें सोशल साइकोलॉजी को भी देखना चाहिए, समझना चाहिए। लोग धर्म की तरफ क्यों जाते हैं, इसको भी सोशली हमें सोचना चाहिए। तो मुझे ये हमेशा लगता रहा कि मार्क्सिस्ट लोग जिनके संपर्क में मैं आया और कुछ समय तक रहा भी, तो वो भी एक छोटे दायरे में सोचते हैं। और जैसे मैंने कहा कि मैंने तो हिंदुत्ववादी लोगों के बीच में भी मैं रहा, घर में ही हिंदुत्ववाद था, तो उनका सोचने का ये दायरा भी बहुत छोटा था। तो मुझे लगा मुझे इस ट्रैप में अटकना नहीं चाहिए। सो जहां से भी जो भी अच्छा है, वो सब ह्यूमैनिटी के लिए अगर कंट्रीब्यूट करता हो, यूनिटी के लिए अगर कंट्रीब्यूट करता हो, तो वो अच्छा है। बट अगर आप सेपरेट कर रहे हो लोगों को आपकी जो भी एक्ट है उससे, तो आई कैनॉट रिलेट विद देम। That is सो very मैंने ये सोचा कि मैं किसी भी एक तरफ नहीं जाऊंगा, किसी भी एक तरफ इंक्लाइंड नहीं रहूंगा। so. I have one question here. It comes to my mind. You use the word humanity several times in the course of our conversation. So looks like you are very curious and interested in the human nature and what it makes us human. So from that perspective, once you acquire humanitarian perspective, what happens to your identity as a nationalist? Because another aspect of the RSS ideology is Hindu nationalism. So you commented about the Hindu side of it. What about the nationalism side of it? Do you have any thoughts on that? नेशनलिज्म पर रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत अच्छी बुक है। और मुझे लगता है कि मैं रविंद्रनाथ टैगोर से बहुत रिलेट कर पाता हूँ खुद को भी, कई मामलों में। सो यूनिवर्सलिज्म से आपकी नेशनैलिटी अगर रिलेट नहीं कर पा रही है, और अगर आपको सेपरेट कर रही है यूनिवर्सलिज्म से, सो दैट नेशनैलिटी इज डेंजरस टू द ह्यूमैनिटी। हम्म। अगर अगर पाकिस्तान में भूकंप होता है, तो हमें मदद करनी चाहिए ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। अगर गाजा में कुछ हो रहा है अभी, या यूक्रेन में कुछ हो रहा है, सो वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, एंड वी शुड अंडरस्टैंड देयर सफरिंग्स। लेकिन वो लोग हैं, हमारे लोग नहीं है, इस तरह की जब बातें आ जाती है, दैट इज अ क्लियर कट लाइन ऑफ सेपरेशन। तो मुझे लगता है कि इस तरह की नेशनैलिटी आपको डिवाइड करेगी, आपको यूनाइट नहीं करेगी। जबकि कल्चर, तो हम, जब ये कहा जाता है, इवन हिंदुत्ववादी लोग ये कहते हैं कि हिंदू नेशनैलिटी फॉर एग्जांपल, और हिंदू नेशनैलिटी में ये कहा गया है कि हमारी हिंदू संस्कृति कितनी उदार है, कितने दुनिया के बारे में सोचती है, हम विश्व गुरु है या होने जा रहे हैं, एंड समथिंग लाइक दैट। सो मुझे लगता है अगर आप विश्व गुरु होने
का दावा कर रहे हो या विश्व गुरु होने का सपना देख रहे हो, लेकिन आप यूनिटी की बात नहीं कर रहे हो, तो कैसे आप विश्व गुरु बन सकते हो? आप सबके मतलब पूरी दुनिया के बारे में सोच नहीं रहे हो, तो कैसे आप तो कैसे आप विश्व गुरु बन सकते हो? सो दैट काइंड ऑफ नेशनलिज्म, ये दुनिया को बर्बाद कर देगा। एक नेशनलिज्म वर्सेस अनदर नेशनलिज्म, ये दुनिया को बर्बाद कर देगा। Absolutely, I understand. Now, other thing I want to ask you, uh, I'm assuming you have traveled some. I used to live in Delhi for a while, and when I walked around Yes. the streets of Delhi, it is almost like a kaleidoscope of different eras of India's history. Right, right. There are monuments all over the place. There is old Killa, Purana Killa, there is Lal Killa, there is Jama Masjid, there are different gates around the city, which are very ancient gates. And when I grow out of that, in different parts of the city, there's different kind of food. Now you go to Nizamuddin, you go to Karim's and you eat the Mughlai food, which is hundreds of years of tradition. And you go somewhere else, you can have a vegetarian thali. So Delhi is a composite culture, not just of people who live together now, but a culture that has evolved over a period of time, even if it means it was a culture of different foreigners coming into the city, into the country, taking over the country, colonialism, and so on. But it leaves behind a flair of different cultures in us also. What are your thoughts on that? When you see these monuments, does that give you any feeling? Historically and socially, कल्चरल क्रॉस पॉलिनेशन होता ही रहा है पूरी दुनिया भर में। आप शुद्ध संस्कृति की बात कर ही नहीं सकते हो अभी। दिस इज आवर प्योर कल्चर, दिस मीन्स अवर कल्चर, ये भी हो ही नहीं सकता। कि आपको पता भी नहीं है कि कितनी सारी चीजें जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो किसी और कल्चर से आई हुई है। कई सारी चीजें हैं, आपकी थॉट प्रोसेस की कई सारी चीजें हैं जो किसी और कल्चर से आई हुई है। So it is meaningless to claim that ours is the pure culture or ours is the great culture, because cross pollination ही दुनिया में होता रहा है। And it is I think it is essence of nature. yes. So और क्या होता है कि दूसरे कल्चर का जो इन्फ्लुएंस हम पर पड़ता है वो हम डायरेक्टली सारा इन्फ्लुएंस नहीं लेते हैं, जो हम में एडजस्ट हो पाता है वही हम चीजें लेते हैं। सोसाइटी का एक कलेक्टिव विजडम भी होता है। सो सोसाइटी वही चीजें लेती है और वो भी धीरे धीरे लेती है, वही चीजें लेती है जो कि आप अंदर ले सकते हो और आप खुद को भी बदल सकते, तो वो कलेक्टिव विजडम से चीजें आती है। तो मुझे लगता है कि ये चीज बहुत अच्छी चीज है। तो हमें ये पहले सोचना होगा कि हम कोई भी उस तरह से प्योर है नहीं, और यही फैक्ट है। And the truth is, we are who we are. We cannot turn the clock back. yes. Like अगर कल even if you अगर कल ये प्रूव हो जाता है कि ह्यूमन रेस साउथ अफ्रीका से आई है या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आई है, सो फिर भारतीय संस्कृति या यूरोपियन संस्कृति करने कहने का भी मतलब नहीं रह जाएगा, बिकॉज ह्यूमैनिटी कहीं और से आई हुई है, फिर ह्यूमन रेस कहीं और से आई है और फिर दुनिया में फैली है। So I will go to another side now, and I do want to reference it because I really see your way of thinking has the potential to solve some problems, not just in India, but somewhere else. So when you look at the conflict in Gaza, the war between Hamas and Israelis, what goes in your mind? I'm very disturbed
वन बिकॉज जो लोगों ने सफरिंग देखा है, वो सफर हुए हैं इन जर्मनी एंड इन सम ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, जब वो एक इसराइल नाम के देश से इकट्ठा आते हैं एंड इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ टेररिज्म, वो किसी के ऊपर अटैक करते हैं जिस तरह से, एंड दे बिहेव विद पैलेस्टाइन पीपल इन द सेम वे जैसे उन्होंने सफर किया है, उस तरह का सफरिंग वो अगर दूसरों पर लाते हैं। सो आई वॉज वेरी डिस्टर्ब कि और वो बहुत सालों पहले चीज नहीं है, रिसेंट पास्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो है पूरी दुनिया से धीरे धीरे रेड्यूस होते मैं देख रहा हूँ, श्रिंक होते हुए देख रहा हूँ, विच डिस्टर्ब्स मी। So I want to recall something as I talk to you. When Indira Gandhi was assassinated, there were riots all over. I know. And I was on Rajdhani Express that day with my father, and I witnessed massacre of Sikhs that time. Literally, I saw people being burned alive in front of my eyes. When my train reached Delhi, from my compartment, there were people who were stumbling out with their bodies half burnt and falling down on the platform. As I stepped out, I could smell burning flesh, which has still not gone away from my memory. I can still remember it. My question to you is, whether it was 1984 or Gujarat riots or whatever, we have had riots all over the place. You're talking about the violence in Gaza right now. Have you thought about what makes humans so barbaric? What makes us want to hurt other humans so savagely? Two things. One, we must not forget that we are animals. So there is something called animal instinct in us. वो जो वाइल्डनेस है, वो एनिमल क्रुएल्टी है, वो हम में है, नंबर वन। नंबर टू, can I interrupt you once? I yes. said the same thing when I was talking to Mallika Sarabhai, and she corrected me. She said even animals don't kill yes, when they are not hungry. They kill for an instinctive evolutionary purpose. Yes. She's right. Humans right. kill more without reason than animals do. So let us not compare. Let us not blame animals and put them in the same. She is right. Yes, I know. No, but then second thing comes into play, and that is the idea of power. ये पावर की जो आइडिया है कि हम किसी से ऊपर है या ऊपर होना चाहते हैं, किसी को तो कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी को मैनिपुलेट करना चाहते हैं। सो द आइडिया ऑफ पावर, और वो तो फिर एक ब्रेन चाइल्ड है ह्यूमन बीइंग का। सो एनिमल इंस्टिंक्ट combined with that brain child called the idea of power is very dangerous, and I think that is the thing which is killing the world. Do you think it is the politicians who invoke vigilantism amongst people, or is it just inbuilt in people? No. I don't think it is just politicians. And when I say idea of power, I can see everywhere in a way. Gender inequality bhi kya hai? It is again idea of power. Somebody wants to be superior, और किसी को फिर suppress करना चाहते हैं with their whatever power they have got. It can be a muscle power, it can be money power, it can
brain power, it can be anything. So idea of power, मुझे किसी से ऊपर रहना है, मैं सुपेरियर हूँ, या आगे जाके मैं सुपेरियर बनूंगा, सो ये जो है आइडिया ऑफ पावर इज प्रॉब्लमेटिक, और वो हम सब में है इन डिफरेंट वेज, हम सब में है, एंड दैट्स व्हाई कल्चर इज वेरी मच नीडेड। और मेरी कल्चर की जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो आपको यूनाइट करे, जो आपको समझाने की कोशिश करे कि हमारा नेचर एज अ एनिमल ये हो सकता है, लेकिन हमें पूरी दुनिया की पिक्चर को देखना है, पूरे सोसाइटी के पिक्चर को देखना है, फिर बियॉन्ड ऑल ऑड्स आपको एक दूसरे से कनेक्ट करना है। वो कनेक्ट करना और वो जो मीनिंगफुलनेस है ऑफ लाइफ, मीनिंगफुलनेस ऑफ द वर्ल्ड, ये तो एनिमल्स में नहीं होता है। वी गिव मीनिंग to our society, we give meaning to ourselves as a human being। so वो जो मीनिंगफुलनेस है, वो मीनिंगफुलनेस कंस्ट्रक्ट करना ये कल्चर का काम है। वो जो कल्चर होता है वो अगर ह्यूमैनिटी की दिशा में जाता है तो अच्छा रहेगा, बट अगर वो कल्चर फिर अगर वो मैं जो कह रहा हूं कि आइडिया ऑफ पावर का शिकार हो जाए कल्चर ही, सो कल्चरल सुप्रीमेसी की बात होती रहेगी। I get it. And that again is a problematic thing. I understand. So now I want to go to the last part of our conversation. I want to respect your time. You have to go tomorrow. This whole project of mine, and I've completed 50 dialogues till now, is for the next 3 generations, for next 100 years. When you and I will not be there at all. A child, say a child of 10 years, 15 years old, is watching our dialogue at that time. That time, none of our leaders from today will be there. There will be a new India, new humanity watching our video. So, just like you picked up books from library about Buddha, about J. Krishnamurti, none of them exist anymore. But they have opened a new door in your mind, a new window in your mind. If we have to open a new window in the minds of a 3rd generation from now, and if they watch this video, I want you to say something to them. Take all your life experience, your transformation, the feelings of openness and freedom and rationality you feel today. What would you say to them? Say something to this generation that is not going to have access to you as a person, but your thoughts through this video. आज की जो जनरेशन है, एक तो because of this connectedness that we have today, because of the technology, we are living in a virtual world in a way. और वर्चुअल वर्ल्ड से होता यह है कि कनेक्टेडनेस तो होता है, बट दैट इज नॉट द ट्रू कनेक्टेडनेस। सो ट्रू कनेक्टेडनेस के लिए मैं चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी जहां पर जरूरत है वो जरूर आप उसका इस्तेमाल करिए, बट टेक्नोलॉजिकल या वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आके ह्यूमन कनेक्ट बहुत जरूरी है। बिकॉज टेक्नोलॉजी आपके अंदर जो चीज पैदा करेगी, जो आपको कई सारी चीजों पे बांट देगी। अगर मैं गूगल कर रहा हूँ, कुछ मैं ढूंढ रहा हूँ, सो ढूंढते ढूंढते मैं 10 मिनट के बाद ऐसी जगह चला जाता हूँ जो मैं ढूंढ ही नहीं रहा था, और मैं भूल जाता हूँ कि मैं क्या ढूंढ रहा था। सो इट डिविएट्स मी। तो ह्यूमन कनेक्टेडनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, पॉज योर सेल्फ। आज हम बहुत दौड़ रहे हैं। किसके लिए, किस चीज के लिए, किस ग्रोथ के लिए, किस ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं? इज इट जस्ट मटेरियलिस्टिक ग्रोथ? हमें अगर लग रहा है कि हम ह्यूमन माइंड की ग्रोथ भी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हम ह्यूमन माइंड की ग्रोथ कर रहे हैं। बिकॉज अगर एआई आ जाएगा, और आ ही रहा है, तो उससे भी कई सारी चीजें या प्रॉब्लम्स our next generations are going to face। so just pause और सोचो कि आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो,
क्यों करना चाहते हो, वेयर आर यू, व्हाट यू वांट टू अचीव अल्टीमेटली। और ये अचीव करने के बाद मतलब काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज वेरी मच नीडेड इन दिस काइंड ऑफ द वर्ल्ड दैट वी हैव। तो ही आप एक अंदर से पीस फील कर पाओगे। यू may not read Buddha, you may not read Krishnamurti as I read, but maybe ऐसे कई सारे फिलोसोफर्स हैं पूरी दुनिया में, उनको पढ़ने के बाद आप कोई किसी भी ट्रेडिशन को फॉलो करो या किसी भी ट्रेडिशन तक पहुंचो, लेकिन अल्टीमेटली जो फिलोसोफर्स और सेंट्स रहे हैं वो एक जिस चीज की बात करते हैं, ह्यूमन पीस की, तो उस तरह उस दिशा में आप जाओगे या उस दिशा में आप कंट्रीब्यूट करोगे तो ही आपकी ग्रोथ है। से फॉर एग्जांपल, अगर मेरे अंगूठे में दर्द है कुछ, बट माय होल बॉडी इज रेस्टलेस, सो अगर आप रेस्टलेस हो तो इन अ वे पूरी दुनिया भी रेस्टलेस है। वो जो रेस्टलेसनेस है ये आज का एक नेचर बन चुका है। सो मुझे लगता है कि इस रेस्टलेसनेस को भी आपको समझना होगा, why this restlessness is there in the world today। और पहले खुद पर काम करो और फिर आपके दायरे में जो भी लोग आते हैं उनके साथ काम करो। अगर आप लोगों से कनेक्ट कर पाओगे तो आपको ये दिखेगा कि ये रेस्टलेसनेस और किसी में भी है। सो वी शेयर ग्रीफ फर्स्ट and then start sharing joy with others। You need to create joy, you need to create happiness, you need to create uh, the ultimate human values for each other। So that you need to contribute। uh, तो हम इकट्ठा चलेंगे तो ही शायद दुनिया बदलेगी। एक कविता है हिंदी की, बहुत अच्छी कविता है। अ, जैसे मैं थोड़ी बहुत रिमेम्बर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये कविता ऐसी है। एक आदमी था, अकेला बैठा था, सो मैंने हाथ बढ़ाया। वो मुझे नहीं जानता था लेकिन मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। मैंने हाथ दिया, वो खड़ा हुआ, हम हाथ में हाथ डाले, साथ में चलने लगे। हम एक दूसरे को नहीं जानते थे लेकिन साथ चलने को जानते थे। वाह। सो ये जो साथ चलना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अ, इसीलिए मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट, बट कितनी, ये आपको आपकी जिंदगी को ओवर पावर नहीं करनी चाहिए। यू आर नॉट ब्रीदिंग, यू आर यू नो आप मीडिया वर्ल्ड में इस तरह से रह रहे हो कि यू आर ब्रीदिंग थ्रू इट। इट्स अ Yes. प्रॉब्लम। सो यू नीड टू पॉज, यू नीड टू थिंक, यू नीड टू It is रिफ्लेक्ट। breathing for you. Yeah, yes. So this, I told you this was the last question, but I have one question because, and this is very personal to me. So I'm going to seek your advice. Okay. No, sir. So during emergency, Atal Bihari Vajpayee, Advani, Shyamnandan Mishra, and my father were in the jail together in the same room. Then, of course, Atal Bihari got parole, he left. Then Advani, S.N. Mishra, and my father were together. So there is some kind of a historic sense of familiarity with him. And I have this craving that I would love to have a dialogue with him. What question would I ask him? If I really had a dialogue with a very open-minded, curious, intellectually questioning conversation with him, not in a way of blaming or something, what questions would I ask him? What is your idea for Ramarajya, or a good society, or a idea of India? और इस आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर ही या आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटी को लेकर ही हम डायलॉग शुरू कर सकते हैं। बिकॉज you may have different
aspects, yeah, approaches towards society and well-being of society. But ultimately, there is some common minimum ground, I think. उस कॉमन मिनिमम ग्राउंड पर पहले हम बात करें. डिफरेंसेस तो जरूर होंगे, रहेंगी. कॉमन मिनिमम ग्राउंड को लेकर जब हम चलेंगे तो ही ह्यूमैनिटी आगे बढ़ पाएगी. अदरवाइज हम अलग अलग अप्रोचेस से अलग अलग दिशाओं में लोगों को या पूरी सोसाइटी को अलग अलग तरफ खींचेंगे, एंड वी विल नॉट बी टुगेदर एनीमोर. Absolutely. So you were a participant in a movement that he started. If you were to turn back and ask him a question, what would you ask him? To Atal Bihari? No, to Advani. To Advani ji. मुझे याद है कि अडवाणी जी ने एक बार जिना के बारे में भी कुछ कमेंट्स किए थे, और जिसके लिए उनको इन अ वे सजा भी भुगतनी पड़ी आरएसएस परिवार में. मैं ये पूछूंगा अडवाणी जी, आप अगर बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ, क्या आपको लगता है कि आपने जो आंदोलन चलाया उससे कितनी चीजें अच्छी हो पाई और कितनी चीजें बुरी हुई? क्या आपने कंस्ट्रक्ट किया और क्या आपने गिराया समाज में? आप बता सकते हो? ये मेरा सवाल जरूर रहेगा. Wonderful. Thank you so much, Abhijit. Actually getting to know you is wonderful. And let us stay in touch. Let us meet sometime. And I am very happy that I got to know you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Wonderful. What are the two songs? I want to include some music in the background for beginning and end. What music do you like the most? What is your favorite song? There are many such songs, but one song, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन. Very good. I love it. Wonderful. Because मुंबई में आके बस दौड़ ही रहा हूँ. कितने साल हुए दौड़ ही रहा हूँ. ये जिंदगी फिर ऐसी बनी है कि वो जो गोवा में एक अच्छा वर्ड है सुशेगाद, मतलब रिलैक्स्ड. सो वो जो सुशेगाद फीलिंग ऑफ लाइफ होना चाहिए वो होता ही नहीं है. सिर्फ दौड़ रहा है. कई बार ऐसा लगता है किस लिए दौड़ रहा है, क्या है ऐसा, कहाँ पहुंचना है कि इतनी जल्दी है, एंड समथिंग लाइक दैट. सो ये सॉन्ग मुझे बहुत इस मामले में अच्छा लगता है. दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन. Wonderful. Thank you. 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 Goodbye. Bye bye. Bye bye. बैठे रहे ससुरे जाना